हिंदी समझ में नहीं आती। साउथ के स्टूडेंट्स भी होते हैं, साउथ इन साइड्स के भी, और अलग अलग साइड से भी मुझे मैसेजेस आते हैं पर्सनली कि मैम लेक्चर आप हिंदी में लो। तो फिर क्या होता है कि हिंदी में फोकस करती रहूंगी, फिर इंग्लिश में दूंगी, तो बेटर आई विल गो विथ one and one. Okay, clear? I hope you can understand both of these languages and you will not find any difficulty in going on with any, communication. So let us begin with something. I have not got any introduction from the Aisha and Nashra and Lakshit. Kindly please turn on your cameras, you three beautiful people of this today's class. Lakshit, wait a minute. Yeah. Wait a minute. Hello, ma'am. Nashra Banu. I have my own state of research and creativity business. To the side. Okay, Bhavish, no problem. I just got your message from here. I hope you're doing well in your site and you will be watching me from here live. This is a live class. So whatever doubts you will have in this class during my, I'm getting some even messages from that side. Yes, ma'am. Fine. Okay, let us begin. So I was focusing on something very important, that is how to catch the client. I hope I'm clear with my introduction. I'm Varnali Chakravarti. I'm going to be your teacher for today. And I'm going to take you the tour of how you can be a good designer, how you can attract clients, and what are the basic things that as a designer you need to keep in mind. Or else, there are many designers around the globe who are very well successful, but what can be much more better think about you rather than them, and why people should come to you, not to them. So that is the factor what I'm going to teach you through today's class. Wait, let me share my screen. Okay. मेरी ये प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है? पावर पॉइंट, इज दिस इज विजिबल टू यू ऑल? Yes, ma'am. Okay. So don't think about this interior class. Today I'm going to just teach you the designing aspect. What is designing? How we can be a good designer? What are the things that we have to perform as a designer? First of all, for any designer, the one thing that you all have to remember is what is designing element? What are the principle of design in designing field? Why it is necessary to go through with this all aspect of designing? Because what happened? Many of us are good in creating some drawings, or we are good in selecting some kind of fabric. We know how to communicate. There are people who can be a very good communicator, but we fail to do as a designer. So what is the failure reason why people fail as be a good designer? Can someone tell me what can be the major reason that people fail to become a good designer? Anyone? And yeah, please, you can speak. आपने रेज किया है ना? Please tell me. Yes, please. Gagan, yeah. Yeah, I mean, I don't know, because we were trying to get the kitchen done. मतलब हिंदी में बोल, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ. So उसमें मैंने देखा है कि I mean, a lot of designers that we've got, I mean, interior designers we've got, but एक था कि they were not able to create the kind of kitchen that we were looking at. So The niche, everything is around the niche. Even in the Instagram, you want to become a influencer, you need to find out the niche. You need to find out the factor that people should be say, wow, what is your design, why this is not here, and how she is making, wow, why this kind of this, people can find out your own style and how that style is created. The factor is missing.
So Gaganji, you said right. People are there are a lot of interior designers, but there is something which is less, and maybe they are only good communicator, but they are not good at presenting their things. There are people who can communicate a lot more than you will find oh my god, they are so good. I think they are superb. We should do something with them. But after when you see their work fails because there is no functionality in the designing, there is no element in the designing, they are not following the principle of designing, and the moreover, there is less aesthetic work. Whenever as a designer, it's not just about the interior designing, it's more about that whoever in the designing field. Like if you want to be a fashion designer, you need to have some own sense of styling your outfit. You should be having your own sense of presenting yourself. But what if you cannot communicate well, you don't have your confidence level, but you know how to wear the costume, you know how to dress up well, you know how to shine a little bit, but you fail to communicate. So somewhere that also make an impact. So where we have to focus, you have to focus what is your role, what role you will be doing in next 10 years. Sadia, yes please communicate. सादिया आप बोल सकते हो. सादिया आपने हैंड Okay. रेस की. Okay, okay. हाँ मैम बोलिए ना. एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कि टॉपिक क्या चल रहा है. आज फर्स्ट डे क्लास है, मैं थोड़ा सा लेट हो Today, गई. I'm just focusing on designing aspect. I'm not taking you something like this is the interior or this is the fashion or this is jewelry. None of this is going to be happen today. I'm going to tell you how the designing role is going to be, change your life. And for that, I'm going to teach you today the basic principle of design, the element of design, and how we can implement this design to attract the clients, the customers, how how things can be different from you to another, and how you can attract the client attention towards you. So these are small few things that you're going to learn today in introduction class. Is it okay? I hope you will enjoy this class. And this is something which is very important, but people fail to work on with, because I feel they think okay पैसा है, material है, इसको दे दो उसको दे दो, काम खत्म करो. Not everything is all about पैसा. It's something that you have your own style. If there is no your own, if you don't know what is your own style, how you will be outstand with other people? टेल मी, इज इट पॉसिबल? मैं भी डिजाइनर हूँ, आप भी डिजाइनर हो, आप ज्वेलरी बना रहे हो, आप इयरिंग डिजाइन कर रहे हो, आप कपड़ा सिला रहे हो, आप कपड़ा डिजाइन कर रहे हो. आपके डिजाइनिंग में और उनके डिजाइनिंग में क्या फर्क होना चाहिए और क्यों फर्क होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए ना. लेकिन वो पता कैसे करोगे? आपकी एलिमेंट ऑफ डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आपको एक डायरेक्शन देती है आपके डिजाइनिंग फील्ड में. यही आपको सबसे अलग बनाता है, क्योंकि हर इंसान का चॉइस, सिलेक्शन, वो अपना स्टाइलिंग, अपना लाइक एंड डिसलाइक अलग होता है. यू कैन नॉट इम्प्रेस एवरीवन विथ योर सेंस ऑफ डिजाइन, बट यू कैन एटलीस्ट अट्रैक्ट समवन with your sense of design. Is it possible? It is possible, right? You can attract anyone with your sense of design if that is so like impressing. Gagan, yeah please. Gagan ji बोलिए. मेरी सोच ये है कि अगेन आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा आइडिया ये है, आप इंटीरियर डिजाइनर को तब बुलाएंगे जब you want to design something which is not in what you already getting. I mean, आप क्यों इंटीरियर डिजाइनर को नहीं तो आप तो उसको बुला सकते हैं ना, क्या कहते हैं, रेगुलर कारपेंटर, एंड उनको बोलो जैसे रैक्स वो बना दो, वो बना देगा. Yes, yes, बट yes. इंटीरियर डिजाइनर इज वेयर दे ऐड द डिजाइन एलिमेंट दैट is not only functional but also aesthetically beautiful. So Yes, and it should yes, yes. capture the mind of the consumer essentially. यस, मतलब मेरा टू द मानना है, I पॉइंट, could be टू wrong. द पॉइंट. गगन जी आपने एकदम सही कहा. जो भी आपने अभी पॉइंट्स कहिए वो एकदम सही कहिए कि ये जो चीजें है ना, एक कारपेंटर को और एक इंटीरियर डिजाइनर को अलग बनाती है. पहली बात तो कारपेंटर को अपनी वर्क ऑफ एक्सपीरियंस से आता है, उनके पास डिग्री नहीं होती.
लेकिन उनके पास वर्क ऑफ एक्सपीरियंस होता है, इसलिए उनके वर्क में अलग फिनिश होगा। लेकिन एक डिजाइनर फंक्शनैलिटी पे फोकस करता है, एस्थेटिक वैल्यू में थर्ड पॉइंट पे फोकस करता है। पहले फंक्शनैलिटी, दूसरा पॉइंट होता है आपका ये कंफर्ट, एंड थर्ड होता है आपकी एस्थेटिक वैल्यू, जो कि पार्ट होता है डेकोरेशन और किसी चीज को ब्यूटीफाई करने के लिए। मोस्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स या फिर एक ज्वेलरी डिजाइनर्स या फिर फैशन डिजाइनर्स फेल कहाँ होते, डिजाइनिंग पार्ट ही फेल कहाँ होती है, जब वो नहीं समझ पाते हैं कि एलिमेंट ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल डिजाइन को कैसे फंक्शनैलिटी में लाए। फंक्शनल किस, ये मैं पढ़ के भी देख, अभी पढ़ के समझ जाओगे व्हाट इज लाइन, व्हाट इज शेप, व्हाट इज रिदम, व्हाट इज बैलेंस, तो कोई भी पढ़ के समझ सकता है। लेकिन इनको आपने कभी फंक्शनैलिटी में सोच सकते हो, या फिर इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज हो सकती है, ये आपने कभी सोच सका है? ये डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होता है चीजों का, वो डायरेक्शन हमको पकड़ना आना चाहिए। इफ यू कैन होल्ड दैट डायरेक्शन, यू कैन बिकम द ग्रेटेस्ट डिजाइनर इन इंडिया और इन दी वर्ल्ड। बिकॉज हर इंसान में एक अपनी खूबियां होती है, अपनी टेस्ट होती है, अपनी चॉइस होती है। लेकिन अगर वो टेस्ट मैं किसी पे थोप दूं तो चलेगा क्या? नहीं ना। डिजाइनर्स ये नहीं कर सकते। डिजाइनर्स का पार्ट का जो मेन रोल होता है वो होता है एलिमेंट ऑफ डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। सो लेट अस बी फोकस व्हाट इज एलिमेंट ऑफ डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। ओके, इस आपको धीरे धीरे समझेगा ये स्टेप बाय स्टेप कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो पहली चीज जो एलिमेंट क्या होती है, किसी चीज को अगर आपको शुरू करना है तो पहले तो एक डॉट से शुरू होता है डिजाइनिंग पार्ट में। आपने देखा पृथ्वी भी जब बन रहा था, पृथ्वी का जो पहला सोर्स था, पहले अगर आप पृथ्वी को भी छोड़ो, आपने सबने पढ़ा होगा एटम का एक पार्ट, एटम एंड उसके ऑर्बिट्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ओके, तो ये तमाम एनर्जी जब इस सृष्टि बन रही थी तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट या किसी सोर्स का जन्म हुआ होगा, तो शुरू हुआ है डॉट से। तो वैसे ही डिजाइनिंग फैक्टर में कहीं पर भी अगर कुछ शुरू करना होता है हमें, तो शुरू होता है पॉइंट या फिर डॉट से। फिर वो डॉट किसी चीज पे मूवमेंट होने लगे तो बनती गई हमारी लाइंस, और लाइन धीरे धीरे बनते 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 उसमें वर्टिकल लाइन आने लगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आने लगा। ये वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन होती क्या है? वर्टिकल लाइन मतलब जो सीधा हो, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो ऐसे लेटा हो। ओके, ये सीधा लेटा हुआ डिजाइन आप लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, ताकि ये लैंग्वेज आज का क्लास आपको ऐसा लगे कि मैं नींद में भी पूछूं तो नेक्स्ट डे आपको चीजें मजेदार लगे, मजा आ जाए, अरे क्या मैम बोल रही है, वाह। ठीक है, सो लाइन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, वर्टिकल, नॉट ऑन टू पार्ट, देयर आर फोर पार्ट्स, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रिड लाइन and diagonal line. There are basic lines which is in the element of design. फिर उसमें भी बहुत टाइप्स आ जाते हैं, कर्व लाइन, वेवी लाइन, स्पाइरल लाइंस। तो ये सारी लाइंस कहाँ यूज होते हैं? आपने देखा आप सबके पास आईब्रोज है, तो ये मुझे बताओ ये कौन सी लाइन होगी? कर्व लाइन है या वेवी लाइन है या कौन सी लाइन है? इवन सबके पास अपने अपने हेयर है, अपनी बॉडी पोस्चर्स है। तो आपकी जो आप जो बॉडी पोस्चर है वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है, राइट? इवन मेरे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा शायद, एक मिनट स्टॉप स्क्रीन करती हूँ मैं। ओके, मैं आप कर्सर घुमा रही हूँ, आप मुझे बताओ ये जो लाइन है ये लाइन क्या है? क्या आपको ये दिख रहा है? this is visible to you all? This is called vertical line and this is called horizontal line. Whenever we are trying to make any design, if we do not follow the structure of this element of design, that is horizontal line and vertical line, we cannot make any discipline in design. आपको कभी भी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ लाइंस लाना ही पड़ेगा। कभी वो चाहे तो आप वर्टिकल भी ला सकते हो, डायगोनल भी ला सकते हो, वेवी भी ला सकते हो, जिगजैग भी ला सकते हो, आप कुछ भी एक लाइन क्रिएट कर सकते हो। बिना लाइन के कुछ भी चीजें क्रिएट नहीं होती। अगर आपको कुछ ज्वेलरी के नेक पीस, जैसे कि मेरे यहाँ पर एक ये पेंडेंट है, ओके, ये कौन सा लाइन का बना हुआ है? इट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? इट इज नन ऑफ दैट। ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, इट इज विच
What line we can talk about with this? Think about it. ये क्या हो गया आपके लिए? ये हो गया आपका एक वेवी लाइन, कर्व लाइंस। सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको कोई आइंस्टाइन वाली बातें समझने की जरूरत ना पड़े। इजीएस्ट से इजीएस्ट लैंग्वेज आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट होगा। सो व्हाट इज लाइन? द लाइन इज द पाथ ऑफ पॉइंट मूविंग थ्रू स्पेस। ओके, लाइन इज व्हाट? पाथ ऑफ point moving through a space. Line can be anything: vertical line, horizontal line, diagonal line, zigzag line, spiral line, wavy line, and you can use this line in anywhere in your designing part. Is it clear? You can make a curve line like this of neckline. You can make an eyebrow out of it. You can sketch a house out of it. How we will do that, I will come next by, step by step. इज इट क्लियर? मैं अब तक जो समझा रही हूँ लाइन के बारे में, किसी को कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है तो आप मुझे बोल सकते हो। एनीवन? अभी तक गगन तो जी, क्लियर है। क्लियर मैंने है? कहा अभी तक क्लियर है। Thank you. Okay, now we will come into shape and how shape is different from form. Can someone tell me about गगन जी, आपके अलावा कोई और? I want that other students should be interacting with this class, and I request you all to please turn on your cameras, except Bhavesh, because he is somewhere busy. So whoever is in home or you are attending this class, please turn on your cameras. This is a humble request to all of you, because I want to make this class interactive. I don't want to make it boring. I'm just speaking and saying and everything, and you will be doing something, and this should not be happen, because I wanted that each of you should be focused over here, and you should have your each eyes and ears to be in this class. Please. Done. I want more to be get turn on your cameras, please. Okay, now we'll proceed to shape and form. How the shape is different from form? To create any house, first you have to draft something. Okay, without drafting anything, not even this house, if you want to create a jewelry, you need to first you have to do something in paper. And without sketching something, can you make it in form of anything? What is form, first of all? The thing which is made out of shape, which has some volume added into it, called form. You can see the cuboid, and the same thing is next to it is just a simple 2D line, which is the shape. And what is form? Which has 3D, which has some volume into it. जैसे कि नोज तो हम ड्राइंग में कैसे भी बना सकते हैं, आई कैन जस्ट स्ट्रेट अ लाइन एंड आई कैन जस्ट क्रिएट द नोज एंड इट इज रेडी. बट how you will say this is proper nose in if you are studying organs, so how you will say this is nose? It has some straight structure, it has some volume inside, some muscles into it. What is the muscle? It is a factor of form. Okay, for your just for your understanding, I'm teaching in that way. So don't worry कि मैम आज क्या पढ़ा रही है अजीब सा. आज आपको मैं वो चीजें पढ़ा रही हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. प्रैक्टिकली चीजें मौजूद है, बट आपका नजरिया कभी उस चीज में कभी गया ही नहीं है. ओके, इस पे हम सोचेंगे कि डिजाइनिंग पे कैसे उनको इम्प्लीमेंट करें. तो आपका शेप क्या हुआ? शेप कैन बी एनीथिंग. जैसे कि गगन जी, आपके जो आपने जैसे वॉलपेपर लगाया है, आपने बैकग्राउंड दिया है, तो शेप क्या हो सकता है? शेप आपका ये स्ट्रक्चर हो सकता है, हॉरिजॉन्टल सीलिंग का जो जा रहा है वो हो सकता है, शेप आपका टेबल हो सकता है. लेकिन इनको जो थिकनेस क्रिएट कर रहा है, वो थिकनेस क्या हो जाती है आपके लिए? फॉर्म हो जाती है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटीरियर, अगर मैं सीलिंग के जो बीम साइड जैसे जा रहे हैं, ये जो जा रहे हैं आपके बैक साइड पे, वो तमाम चीजें क्या होगी? जब वो छोटी सी ड्राइंग लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके कुछ वॉल्यूम ऐड कर देती है, तो फॉर्म पे वो कन्वर्ट होती है. सिर्फ बात है नजरिया को अलग तरीके से देखने की, चीजों को अलग तरीके से देखने की. तो शेप क्या हो गया? शेप implies to spiral and usually perceive a two-dimensional form, her depth and length and width, and perceived as in three-dimensional becomes आपका form. और भी अगर सिंप्लीफाई में बोलूं तो I have a good idea. We all have the phone with us.
Okay. हाँ, गगन जी, 1 minute. We all have the phone with us. So this is rectangle as a shape. Shape is in different size. We can see in different size. Shape can be geometrical. They can be organic. Shape can be seen in rectangle, square, rhombus, triangle, angle. We have gone through with this basic parts of shape, right? But if I want some cuboid shape, how it will come? When it will have some volume into it, it will come into cuboid shape, right? Similarly, what is it? It is a simple rectangle mobile phone. I hope it is visible. It is a simple form of rectangle shape of this. I have a cell phone which is the simple rectangle. But when it has some volume into it, it become a handy phone. Okay, it become a handy phone which I can use. Can I use a simple rectangle structure and I can call it as a phone? No ना, it is not possible. सिर्फ रेक्टेंगल हो और मैं उसको फोन बोलूं तो बोल सकती हूँ क्या? नहीं. जब तक उस रेक्टेंगल में वॉल्यूम ऐड ना किया जाए, एक स्ट्रक्चर ना ला दिया जाए, तब तक वो फॉर्म कहला नहीं सकते. अगर वो रेक्टेंगल के साथ कुछ वॉल्यूम ऐड करो एंड देन उसको आप एक स्ट्रक्चर में डेवलप करो, तब जाके वो फॉर्म कहलाता है. Now, Gagan ji, you can ask me a question. I figured, I think it'll be the later part. Something that struck me was the concept of when you Shape talk and about shape, shape yeah. mein, but I think it's to do with the balance because I mean, I don't know if I'm correct here, but shape also creates a mood, a certain. So I'm not sure Yeah. if it's in the shape or it's in the Okay, balance. I got it. Gagan ji, that is another part of this session. But right now, I'm just going through those who don't have Basics. any idea of, shape and form. So I'm taking it from the scratch level. So that even those who are very layman to this field of designing, they should know how we use this. How they should know at least the basic principles and how shape is different from form and how we can see shape and form, how they are obtained, how they are created, where we can see these are shapes and these are form, how they can identify in between of these topics. So that is why I'm taking them in with this very scratch level. I will come to that point as well, because I'm going to step by step with this element of design, then we'll come to the principle of design, because the balance itself has a biggest role in element of design. And I will come to that part, don't worry, I will come. Okay, no problem. Thank you. Okay, now we'll come to color. See, everyone has a different choice of selecting color. Someone may like black color, someone may like blue, red, yellow, orange, and there are so many colors in this world. But how color can be more beautiful, it's the biggest challenge. How you will identify this color is much better than this color in house, or I should use this kind of stone in my jewelry so that I can make a good design in my jewelry. How I can add more of pebbles, or should I add some pearls, or I should add some diamond stones, or what I should add into my design, how colors can make a difference in my design, how I can make this thing more attractive. So color create your psychology first of all, because whenever you go in market you feel अरे ये ब्लू कलर बहुत अच्छा है, अरे ये ब्लैक कलर बहुत अच्छा है. लेकिन इंटीरियर में हर कलर हर जगह नहीं जा सकता. ज्वेलरी में हर कलर हर ड्रेस पे सूट नहीं हो सकता. ड्रेस में जो आप कलर सूट बनाओगे वो हर स्किन टोन के साथ नहीं जा सकता. तो कलर इज इटसेल्फ अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ डिजाइनिंग एक्सपेक्ट, क्योंकि अगर आपको कलर का सही सिलेक्शन नहीं पता, सही चॉइस नहीं पता, कलर बनाते कैसे, कलर की सिलेक्शन कैसी होती है, तो फिर आप एक डिजाइनिंग तौर पे फेल कर दोगे. तो आज हमारा जो मेन मुद्दा है ना कि डिजाइनिंग का वर्क कैसा होता है, डिजाइनिंग का कोर एलिमेंट क्या होता है. क्या होता है दुनिया में बताते हैं प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, ये तो सबको पता है. प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है. हम ये सीखेंगे कि प्राइमरी कलर के साथ उसका एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होता है, सेकेंडरी कलर के साथ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है. क्या होता है, डिजाइनर्स बहुत है इस दुनिया में, लेकिन उनको उन तमाम चीजों को यूज करके इम्प्लीमेंट करना सबको नहीं आता. और यही इस चीज के लिए यहाँ पर मैं आज बैठी हूँ, ताकि आपकी वो जो एप्लीकेशन वाली जो चीज जो मिसिंग है लाइफ में, वो आप सीखो आज के लेक्चर पे. ओके लेकिन उससे पहले थोड़ा धैर्य रखना होगा. यू हैव टू कीप सम पेशेंस, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम द स्क्रैच टू द हाई लेवल, ताकि आज आपका लेक्चर ना मजेदार हो. आई होप दिस इज क्लियर. सो कलर हैज अ
very big role in designing, because if the room color is not good with your taste, then you will not feel comfortable to be in that home. Or if you don't like a green color, if you don't like pink color, and someone is, you know, giving you the same designing pattern, the same structure of that color, then in some day you will find that I should not be with that person. I either I should not be with that thing. Either I should be just keep myself away from that the person, whoever wearing that pink color or any color which you don't like, and it is just going around you. So ऐसी चीजें आपको समझनी होगी कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट क्या पसंद कर रहा है, क्लाइंट को क्या जरूरत है। तो कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब मामलों में, क्योंकि डिजाइन के बाद अगर कुछ चीज जाती है डिजाइनिंग फील्ड में, समझो आपने नेक लाइन बना लिया, आपने घर सजा दिया, घर बना दिया, नॉर्मल कंक्रीट वॉन्क्रीट सब लगा दिया, लेकिन पेंट बाकी रहा। पेंट में आप रैंडमली किसी भी रूम में कोई भी कलर यूज नहीं कर सकते हो, उसका भी एक रोल होता है। अगर मैंने कहीं पर भी कुछ भी कलर लगा दिया तो चलेगा क्या? नहीं। इंटीरियर हर बार हर 2 दिन में नहीं होता। इंटीरियर इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव, सेम एज ज्वेलरी मेकिंग, सेम एज क्लोथ। अगर आप फैब्रिक को चूज करो किसी क्लाइंट के लिए, तो उसे वो कलर पसंद है या नहीं पसंद है। अगर आप ये कुछ यूनिक स्टाइल बनाने जा रहे हो, तो उस स्टाइल के साथ वो कलर जाएगा कि नहीं। तो कलर एक फैक्टर बनता है आपके डिजाइनिंग के एक्सपेक्ट के लिए। ओके, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ योर एलिमेंट ऑफ डिजाइन। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, कलर क्या रोल प्ले करता है, कलर की क्या साइकोलॉजी, वो सारी चीजें आज ही आपकी क्लास में है। तो आपको कहीं नहीं जाना है। अगर भूख प्यास कुछ लगी है तो पानी का बोतल लाके रख लो, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा मजेदार होगा, थोड़ा लंबा चौड़ा भी हो सकता है। नाउ वैल्यू, वैल्यू क्या होता है? किसी भी डिजाइन में आपको किसी चीज को एड ऑन करना है या उसे कम करना है, किस चीज को एम्फेसाइज करना है, किसी चीज को अट्रैक्टिव बनाना है। तो कलर क्या करता है? उसे अट्रैक्टिव बनाता है या फिर उसे खराब भी कर सकता है। तो मैं कलर के साथ वैल्यू का क्या रोल है? कलर खुद में हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। आप डार्क कलर भी लगा सकते हो, आप लाइट कलर भी लगा सकते हो, लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? वैल्यू डिसाइड करती है कि कितना मुझे 1 ड्रॉप कलर डालना है, 2 ड्रॉप कलर डालना है, 3 ड्रॉप कलर डालना है। समझो वो आपने फेयर एंड लवली का वो एड देखा होगा, फनी पार्ट आई एम जस्ट सेइंग कि ये देखो कितने सारे शेड्स है, अब मैं गोरी हो गई, सो फनी। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो क्या होता है? वो आपको डिफरेंस समझा रहा है कि कलर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, जो एक स्किन टोन के साथ मैच हो रही है या मैच नहीं हो रही है। अगर आपको ये लेवल पे स्किन टोन चाहिए, तो आपको इस कलर के लिए इतनी वर्कआउट करनी होगी। तो चीजें ऐसी काम होती है वैल्यू पे। टेक्सचर, अब टेक्सचर भी 2 से 3 टाइप के टेक्सचर होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम डिजाइनिंग एक्सपेक्ट में पढ़ते हैं वो है 2 टाइप का टेक्सचर। एक होता है एकदम हार्ड टेक्सचर, एक होता है सॉफ्ट टेक्सचर। सॉफ्ट टेक्सचर आपके कुशन के जो कॉटन्स हो गए वो हो गए। हार्ड टेक्सचर मतलब क्या क्या हो गए? आपके स्टोन्स, पेबल और कुछ पीकी टाइप, जैसे कैक्टस के कुछ कांटे, तो वो टाइप चीजें क्या हो गई? आपके हार्ड स्ट्रक्चर पे चली गई। और सॉफ्ट पे जो स्मूथ फिनिश है, जैसे कि ग्लास हो गया, मार्बल हो गया, एकदम सॉफ्ट सिल्की जैसे कुछ हो रहा है, सिल्की भी एक टेक्सचर होता है। फिर और क्या क्या टेक्सचर होते हैं, कोई मुझे बता सकता है प्लीज? अभी आज मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें इंटरेक्टिव हो, मेरे साथ कुछ कुछ बातें शेयर करें, कोई भी। हाँ बताइए प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपकी? हाँ आ रही है। आप बताइए टेक्सचर में कौन से टाइप के टेक्सचर आपको लगते हैं, आपको पता मैम है? जैसे टेक्सचर जैसे हम लोग कुछ भी टच करके हम पता कर सकते हैं कि टेक्सचर कौन कौन से, एक रफ टेक्सचर हो गया, वुडन टेक्सचर हो गया, और एक टाइल्स का बढ़िया टेक्सचर हो गया। तो काफी सारे डिजाइन भी होते हैं। हाँ हाँ, जो अपने टाइल्स का जो टेक्सचर हो गया, जो अपने टर्म यूज किया ना, उसको बोलते हैं विजुअल टेक्सचर। क्या बोलते हैं उसे? विजुअल टेक्सचर। Whenever we विजुअल look for a टेक्सचर। selection of any material, first we are selecting what? We are selecting a visual texture material. We are selecting on visual material selection. Because इसके बाद क्या होता है कि if you find कि this thing is annoying you, or this is not giving you a sense of satisfaction, so you will not purchase or you will not buy that. ओके, देखिए समझ में आता है ये मुझे खरीदना है, ये नहीं खरीदना याद। हाँ, जी जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ गगन जी प्लीज बोलिए। ओके। थैंक यू। the
Thank you. There's one visual, and I think there is another tactile, right? I mean, Tactile. just Tactile is which you can touch and you can feel Feel. through your senses. Okay. so Which so you for can example, for example, if you have, I do not know, but I'm thinking aloud. ऐसे हो सकता है कि जैसे आपके पास एक white walls हैं, उसमें आपने अगर सोफा रखना है, तो maybe you can have maybe a primary color or something that really draws the eye towards the side table and the sofa. Yes. Again, This depending is on the very room. good example. Very good example. Even in this presentation, you can see there are some spiral kind of, there are even the cocktails. शंख देख पा रहे हो आप, छोटा सा टूटा हुआ शंख है, फिर there are the leaves over here. तो लीव्स भी अपना क्या है, वो विजुअल टेक्सचर दे रहा है कुछ. देयर आर सम काइंड ऑफ स्ट्रेंज लाइंस आर गोइंग हियर एंड देयर, and there are something there are courses of sand and making some kind of texture. So there are different type of, right now we cannot sense any of this, but what we can see is that we can visualize it, and whatever we are visualizing, it is called visual texture. Once the thing is you can sense, you can touch, that become your tactile. Okay, one more thing. Please, आपने जिसने रेज किया हैंड, आप अपने बोलिए प्लीज. सादिया. सादिया. ये इंटीरियर की क्लास चल रही है क्या? नहीं, इंटीरियर की नहीं, आज डिजाइनिंग की क्लास है, क्योंकि डिजाइनिंग में आपको सब पता होना चाहिए. एलिमेंट ऑफ डिजाइन भी पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन भी पता होना चाहिए. ओके. और ये एलिमेंट ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, अगर आपको वो ही नहीं पता, आप कितने भी बड़े डिजाइनर बन जाओ, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे. क्योंकि बेसिक ये डिजाइन ही आपको आपका एक यूनिक स्टाइल देता है, आपको ये बताता है कि आपको डिजाइनिंग किस डायरेक्शन में करनी है. बिकॉज आपका डिजाइनिंग करने का तरीका अलग होगा, मेरा अलग होगा, किसी और का और अलग होगा, लेकिन हम तीनों में से सबसे डिजाइनिंग हटके किसका है, और वो कौन सा फैक्टर बना सकता है, हम कैसे अट्रैक्टिव बन सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, क्लाइंट कैसे हमारे पास आ सकता है. तो उसका बेसिक जो फाउंडेशन जो होता है वो है एलिमेंट ऑफ डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन. ये ज्वेलरी में भी जाता है, फैशन डिजाइनिंग में भी इंप्लीमेंट होता है, इंटीरियर डिजाइन में भी इंप्लीमेंट होता है, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर और दुनिया भर में जितने भी ग्राफिक डिजाइनर. एलिमेंट ऑफ डिजाइन मैम, एलिमेंट ऑफ डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के आप नोट्स वगैरह कुछ देंगी क्या हमें? सॉरी, ठीक है. आप, मुझे आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप प्लीज फिर से बोल सकते हैं क्या क्वेश्चन? एलिमेंट ऑफ डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के कुछ रिटर्न नोट्स आप लोग दोगे हमें, जिसे हम बाद में पढ़ के क्यों समझ नहीं, सकें आपको अच्छे से? सबके पीडीएफ मिलते रहेंगे. दैट यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज सी हाँ, माय that's वर्क why इज I'm नॉट जस्ट asking विद दिस, आई हैव टू आल्सो गिव यू दिस नोट्स. बिकॉज देखो, लेक्चर तो आज मैं बता रही हूँ, आपको थोड़े बहुत याद भी रहेंगे, लेकिन आपको रिवाइज करने के लिए भी तो कुछ होने चाहिए. तो जैसे आपके हाँ, 1 वीक के exactly. सेशन खत्म होते रहेंगे ना, जैसे 1 वीक के सेशन खत्म हो गए, तो 1 वीक के अंदर जितने भी थ्रू आउट 1 वीक में कोर्स में आपने जो भी सीखा है, आपको उसके नोट्स मिलते रहेंगे. समझ में आ गया अच्छा, आपको? एक चीज और पूछ रही थी मैम, ये असेसमेंट होंगे क्या? लाइक हाँ, जो क्यों भी नहीं, हमने सीखा, मैं असेस 1 वीक करूंगी. का टेस्ट. Yes, I will assess your Okay. everything, whatever. Even I will give you some tasks to do, and I will do some activity in the classroom itself. So during this, you have to keep some material with you right now. This is just an introduction part of today's class. I don't want to make hectic to anyone, because आज का lecture अगर मैंने बहुत ज़्यादा बट heavy इट इज and वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छी क्लास है, इंटरेस्टिंग क्लास है, हेक्टिक नहीं है. ये तो मजा आ रहा है सीखने में. हाँ, क्योंकि देखो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंटरेक्टिव करो और आप लोग को एंजॉय लगे, और ना चीजें क्या, नजरिया कभी आपको उस डायरेक्शन में किसी ने सिखाया भी नहीं होगा और आपने देखा भी नहीं होगा. तो मैं चाहती हूँ कि आप ना आपके दिमाग, आपकी आंखें सब खोल दो, आपको लगे कि दुनिया में ना आपको ही सब कुछ आता है और आप दुनिया के सबसे बेस्ट डिजाइनर हो. आज से समझ लो कि मैंने ये जो क्लास लिया है ना, आज से और ईच डे आपको कुछ ना कुछ बेहतर सीखने मिलेगा, और कुछ ऐसा सीखने मिलेगा जो शायद आपको किसी ने कभी सिखाया ना हो. आई होप सो. मैं अपना बेस्ट दूंगी आपको, ताकि आपको मजा आए क्लास में पढ़ने के लिए. ओके. श्वेता जी, आपने रेज किया था हैंड, प्लीज आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं. श्वेता जी, श्वेता जी, मेरी आवाज आ रही है? क्या है, क्योंकि मैं मैसेज में ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो अगर किसी ने मुझे मैसेज किया है चैट बॉक्स पे तो मुझे नहीं पता. ओके, हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो कलर, लाइन, शेप, फॉर्म, वैल्यू, टेक्सचर आ गए. अब स्पेस एंड
पर्सपेक्टिव। देखो आपका देखने का तरीका अलग हो सकता है चीजों को, मेरा देखने का तरीका अलग हो सकता है। पर्सपेक्टिव क्या होता है आपका, हम लोग बोलते हैं ना तेरा सोचने का तरीका अलग है, तेरा पर्सपेक्टिव अलग है, तू सोचती अलग है, तू देखती अलग है। पर्सपेक्टिव में डिजाइनिंग में क्या होता है, हम देखने का नजरिया डिजाइनिंग में चेंजेस लाते हैं। किसी को वो चीजें बहुत अमेजिंग लग सकती है, किसी को वो चीज एकदम बेकार भी लग सकती है। तो पर्सपेक्टिव इटसेल्फ इज अ टर्म इज व्हाट, आप किस चीज को किस नजर से देख रहे हो और कितना अट्रैक्टिव आपको वो लग रहा है, कितना बेकार लग रहा है। अपना खुद का नजरिया और खुद का बोलने का सोच। अब डिजाइनिंग फॉर्म में आप देख रहे हो यहाँ पर एक सन दिया हुआ, एक पाथवे दिया है, एक पहाड़ की छोटी 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 ट्रायंगुलर चीजें दी है। मैम योर ये वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस मैम क्लियर। आपका ये माइक ऑन है? ओके आप माइक अनम्यूट मतलब अपने 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 आप को म्यूट कर सकते हो। जैसे आपको कुछ डाउट रहा आप मुझसे पूछना अनम्यूट करके बाद में, ओके क्लियर। तो ऐसे करके लाइंस, शेप, कलर, फॉर्म एंड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब मैंने एक ज्वेलरी डिजाइन तो किया है, लेकिन इसको किसी को पसंद भी तो आ सकता है, किसी को नहीं भी पसंद आ सकता है। ये कपड़े मैंने सिलवाए हैं, ये मुझ पे सुंदर भी लग सकता है, लेकिन शायद आपको सुंदर ना भी लगे। तो अपना अपना एक नजरिया होता है, अपना एक पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का, उसको एब्जॉर्व करने का, उसको डिजाइनिंग में इम्प्लीमेंट करने का। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब ये है कि एज अ डिजाइनर आप किसी चीज को क्रिएटिव कैसे बना सकते हो, किसी का नजरिया कैसे बदल सकते हो। देखो किसी का भी नजरिया आप तुरंत नहीं बदल सकते, कितना भी इवन करण जौहर भी, साबिया साची भी आकर यहाँ पर बैठे ना और उसने बड़ा सा कुछ भी बना दिया ना, फिर भी वो इतने कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे दूसरे डिजाइनर्स के मुकाबले, मैम योर क्योंकि वॉइस इज अगेन ब्रेकिंग। आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही यस है? मैम यस मैम हाँ यस हाँ मैम। आ रही है, आपके पास क्लियर आ रही है। अभी क्लियर आ रही है, ओके। तो मैं क्या कहती थी, जैसे साबिया साची हो गया, या फिर हमारा ये करण जौहर हो गया, या फिर हमारी डी डेकोर की सबसे क्वीन गौरी खान हो गई। तो ये तीनों जन चाहे डिजाइनिंग में कितना भी कुछ कर ले, हर इंसान की अपनी चॉइस, अपनी डिजाइनिंग स्टाइल, सबकी नजरिया डिजाइनिंग में अच्छी भी हो सकती है, अपने लिए लाइक भी हो सकते हैं, डिसलाइक भी हो सकते हैं। वो किसी को कुछ पसंद आ भी सकता है, किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है। यही सिर्फ डिजाइनर्स इस दुनिया में, ऐसा तो नहीं है, इनसे भी पहले बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स आके गए हैं, राइट। जनरेशन जनरेशन ट्रेंड, आपको डिजाइनिंग ट्रेंड के हिसाब से भी पढ़नी होती है, थीम के हिसाब से भी पढ़नी होती है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आपको डिजाइनिंग पढ़नी होती है। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इनको समझने के लिए पहले आपको बेसिक एलिमेंट समझना होगा, इनकी क्रिएटिविटी, इनकी एप्लीकेशन समझने की जरूरत है। बिकॉज मैं सीधा आ सकती हूँ आज के आज ही पूरा डिजाइन का कोर्स खत्म कर दूं, मुझे कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप क्या करोगे, वो रट्टा रट्टा मारने वाला काम हो गया। मैंने आपको स्कूल में कुछ खाना सिखाया, आपने वही खाया, फिर आपने यही मेथड सीख के 10 जगह अप्लाई कर लिया। डिजाइनिंग सबका अलग होता है, क्रिएटिविटी सबकी अलग होती है, सबका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, कोई ज्यादा बोल सकता है, कोई कम हो सकता है। सो देयर कैन बी अ डिफरेंस इन प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, देयर कैन बी अ डिफरेंस इन कम्युनिकेटिंग योर द थिंग्स दैट you want to show to other people. So there are many things as a challenge for a designer. गगन जी प्लीज बताइए। नहीं, मैं भी हाँ सोच रहा था जो आप कह रहे थे कि अगर ये प्रिंसिपल्स आपको मालूम नहीं है, अगर जस्ट सेइंग, then यस how are you going to make any changes to the परफेक्ट pre-existing? परफेक्ट परफेक्ट राइट राइट। बिकॉज यू नो ये आपने अभी तक तो मैं प्रिंसिपल पे आई नहीं हूँ, ये जो एक साइड जो पढ़ रहे हो ना आप ब्लू में एलिमेंट ही पढ़ रहे हो, अब तो प्रिंसिपल में मैं इसका एप्लीकेशन तक समझाऊंगी कि लाइन और पैटर्न, रिदम, प्रपोर्शन, स्केल, बैलेंस, एम्फीसाइज, ये सारे प्रिंसिपल हो जाते हैं। एलिमेंट में क्या आता है, लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, वैल्यू, टेक्सचर एंड पर्सपेक्टिव, ये हो जाती है आपकी एलिमेंट। बट एलिमेंट के साथ जब प्रिंसिपल आता है तो क्या रोल प्ले करता है, और प्रिंसिपल मतलब क्या, पहली बात तो वो समझने की जरूरत है। एलिमेंट मैम मतलब योर किसी चीज, वॉइस अगेन ब्रेकिंग। अभी आ रही है आवाज मेरी क्लियर? नो मैम नो नॉट क्लियर। एक मिनट मैम हाँ। ठीक से आ रही है आवाज तो आपकी, आई थिंक इनका नेटवर्क ठीक एकदम नहीं ठीक है। से नहीं आ रही वॉइस। अब स्टिल इज इट गेटिंग इश्यू? एक मिनट, आई नीड टू सी व्हाट इज द इशू, जस्ट वेट अ मिनट।
don't know, but I am having the full network over here, and I have a full tower over here, and I have full Wi-Fi network over here, but I don't know Yes, why it is getting some trouble. the voice is clear. Is it Your clear voice is right now? clear. Yeah, there is no issue. Your voice I is think so, clear. श्वेता, Please शायद carry से on. वहाँ आपके वहां पर कुछ प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का शायद। ओके हाँ, क्योंकि यहाँ पर पूरा फुल नेटवर्क है, तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम हो सकती है। अरे यार, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लगे तो मुझे बता दिया करो, फिर मैं चेक करती रहूंगी। ओके, so let us continue with other factor. Wait. So now we'll come to a principle of design. But before we proceed to principle of design, I want to ask you, is it the line, shape, color, value, texture is clear? These topics are clear to everyone. Do I have to explain more about it? Do you think that I have not understood any single term of this topic? Because this is something which is going to, will work till last of the class. And I mean, I don't mean that कि यही repetitive class होगा, but this is something you need to have it. आपको वो खा लेना है, ये टॉपिक को समझ के लेना है कि लाइन क्या होता है, शेप क्या होता है, कलर क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, and then we'll come to another topic. Clear है एक चीज है, line, shape, texture. Everyone thumbs up if it is clear. I cannot. Yes, ma'am. Okay, thank you, thank you. Let us proceed to the topic known as principle of art or principle of design. See, principle of design में क्या आता है? Pattern, rhythm, movement, proportion, scale, balance, unity, anti-hazes. ये चीजें प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में है। और इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल मतलब क्या? किसी चीज को फंक्शनली काम करना, किसी चीज को फंक्शनली काम करना। हमने एलिमेंट तो ले लिया, हमने ये एक रेक्टेंगल ले लिया, हमने स्क्वायर ले लिया, हमने ऑरेंज कलर ले लिया, हमने पिंक कलर ले लिया, हमने कुछ अलग अलग कलर, कुछ डार्क कलर, कुछ लाइट कलर के कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लिए, कुछ सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल भी यूज कर लिया, हमने एक छोटी बड़ी चीजें अलग टाइप की पसंद नापसंद आने वाली चीजें सब कुछ एक जगह इकट्ठा कर ली। लेकिन इनको कहाँ यूज करना है ये तो पता होना चाहिए। तो यूज तब पता चलता है जब आपकी प्रिंसिपल्स क्लियर हो कि आपको इस चीज को लाना कहाँ है और क्यों लाना है और कैसे लाना है। एक तो अगर मैं ज्वेलरी में बोलूं तो ये डिजाइन क्या हो जाता है आपके लिए, फिर से मैं ज्वेलरी पे आ रही हूँ क्योंकि मेन क्या है, सबसे इजी लैंग्वेज में ना यही समझा सकती हूँ मैं आपको, या फिर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे अगर मैं फोन में बताऊं तो देखो ये वाला पैटर्न क्या होगा आपके लिए एक रेक्टेंगल हो गया, लेकिन ये रेक्टेंगल में कुछ मटेरियल भी ऐड हुए हैं, कुछ पैटर्न भी ऐड हुआ है, सम लाइक ड्रैगन फ्लाइज, देयर आर सम कैमरास एंड देयर आर सम sensor touch phone, I don't know what it is. So there are so many things in this phone, but इस फोन को ज्यादा अट्रैक्टिव दूसरे फोन से क्या बना सकती है? अब इसके कंपैरेटिवली मैं एक आईफोन को रख दूं तो आईफोन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, या फिर नहीं भी लग सकता है, या फिर यूजर फ्रेंडली के हिसाब से कि मुझे एंड्रॉयड ज्यादा पसंद है, या फिर मुझे आईफोन ज्यादा पसंद है, या फिर मुझे कुछ भी नहीं पसंद, मैं तो मोबाइल फोन ही यूज नहीं करता। लेकिन जो यूज करता है, तो आपने देखा होगा सबके मोबाइल का टेक्सचर अलग होगा, सबका पैटर्न अलग होगा। पैटर्न मतलब क्या? किसी चीज को कैसे डेवलप करके एक सरफेस में लाया गया है। किसी का रफ पैटर्न हो सकता है, किसी का स्मूथ पैटर्न हो सकता है, पैटर्न में रिपीटेशन हो सकती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने दुपट्टे की बात करूं तो ये रहा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। अब अगर मैं ऐसे देखूं तो ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, लेकिन अगर मैं इसको इस डिजाइन को ऐसे देखूं तो इट बिकम योर हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, एंड नाउ इफ आई सी दिस सेम थिंग अगेन एंड आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? am I audible? Loud and clear from my Yes, side. ma'am. Yes, yes. Clear है Okay. मेरी तरफ से। So this is your what? This is your horizontal line. This is your vertical line. और अगर horizontal में कुछ डिजाइन को क्रिएटिव बनानी है तो मुझे समझना होगा कि सारे मेरे डिजाइन ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। यस मैम। और अगर मुझे कुछ वर्टिकल में बनाना है तो मेरे डिजाइन ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। लेकिन ये पैटर्न क्या है? व्हाट इज पैटर्न? कोई चीज कोई स्ट्रक्चर को क्रिएट करिए रिपीटेशन में,
कोई चीज किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करिए रिपीटेशन, वो स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, लेकिन रिपीटिवली एक एक या फिर वर्टिकल में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, या फिर स्ट्रेट हो रहा है, या कुछ भी एक कंटिन्यूशन फॉर्म पे क्रिएट हो रहा है, वो क्या होता है? प्रोसेस पैटर्न का होता है। अ पैटर्न रिफर टू रिपीटेशन ऑफ रीअकरेंस ऑफ अ डिजाइन एलिमेंट, इरेक्ट और वायरिड, which can be established in visual beat. Visual beat, for example, आप देख सकते हो ये ड्रैगन वाला एक डिजाइन है, यहाँ से कुछ पैटर्न गया, फिर यहाँ से कुछ आया, फिर यहाँ पर डिजाइन गया, यहाँ पर कुछ आया, और ये कुछ ना कुछ एक डिजाइन क्रिएट करा है। तो ये क्या, एक रिपीटेशन डिजाइन हो गया। ये रिपीटेशन डिजाइन कैसे आया? आपने एक सिंगल लाइन लिया, फिर ड्रैगन का शेप दिया, फिर उसको थोड़ा आपने वॉल्यूम ऐड किया, तो ये 3D स्ट्रक्चर लोगो बन गया। और 3D स्ट्रक्चर लोगो बनने के बाद इसमें कलर ऐड किया, और ये कलर ऐड होने के बाद क्या हो गया? एक मोबाइल में एक अट्रैक्टिव बैक कवर का केस रेडी हो गया, राइट? इस चीज को आपने क्या बोल दिया? ये आपका मोबाइल फोन का पैटर्न बहुत सुंदर है। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको चीजों में अलग डिजाइन में बनाती है। फिर आता है रिदम एंड मूवमेंट। व्हाट इज रिदम एंड व्हाट इज मूवमेंट? रिदम कुछ नहीं होता, कोई चीज को आप कंटिन्यूस तरीके से ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, या फिर ऐसे 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 घुमा रहे हो, चला रहे हो, या फिर ऐसे से उंगलियां घुमा रहे हो, या फिर आप इवन बालों को भी देख लो, हमारे बालों में कैसी एक रिदम है, ऐसे करके बेबी पूरे हेयर आ रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, आप सडनली कहीं और देखते हो, फिर ऊपर देखोगे, फिर साइड में देखोगे, फिर नीचे देखोगे, फिर यहाँ 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 यहाँ, आपकी आंखों की जो मोनोटनी है वो ब्रेक हो रही है मूवमेंट एंड रिदम के वजह से। मोनोटनी क्या होती है? मोनोटनी मतलब किसी चीज को बार बार देख के आप बोर हो गए, ठीक है? तो मोनोटनीज को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम रिदम या फिर मूवमेंट लेके आते हैं डिजाइनिंग एस्पेक्ट पे, ताकि आपकी डिजाइनिंग क्या हो, सुंदर भी लगे, हार्मोनाइज भी लगे, और क्रिएटिव भी लगे, और एक जो एक ब्रेक थ्रू है ना, वो भी मिल जाए। ओके, तो मूवमेंट क्या होता है आपका? रिदम या मूवमेंट क्या होता है? किसी चीज को अचानक से आप यहाँ कभी देख रहे हो, कभी वहां देख रहे हो, इसको मूवमेंट नहीं कहते, इसको आप फिजिकली कह सकते हो, लेकिन डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मूवमेंट मतलब कोई डिजाइन कभी अलग यहाँ से आ रही, कभी यहाँ से आ रही है, या फिर कुछ कलर में चेंजेस ला लिया, या फिर कुछ कलर ऐड कर दिया या घटा दिया, या साइज छोटे कर दिया, बड़ा कर दिया, तो ये क्या होगा? ये आपके मूवमेंट के कारण बने, मूवमेंट के कारण। This all small factors become the reason for your movement. Whenever you find it, I need to create some distraction, I'm getting bored of this lecture, for example. So you are getting bored of this lecture and you're looking at this and there and then and then you find it, this right now I'm saying something and you find it, oh, it is interesting, let me hear it carefully. So this is something which is, can be one aspect of rhythm or movement of your attention. Clear? So I can attract you through my voice, either I can create some distraction through something. So where there is some kind of distraction and you want to create some movement to one place to another, or you want to just shift to something, then that process become what? A rhythm or movement. Clear? Now we come to proportion and scale. What is scale and proportion? It's a very easy thing. Scale is something, it can be big size, it can be a small size. Scaling something with from big to small or small to large. This is a basic definition of scale. What is proportion? 1:2, 2:4, 4:8, and so on. Proportion can go with scale, but scale cannot go with proportion. ओके, आई विल लेट यू नो व्हाट अबाउट दिस क्या होता है? स्केल क्या होता है? ये हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये स्केल के साथ ये पूरा एक रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल करके बन गया। अब इसमें क्या होगा? ये डिजाइनिंग एक्सपेक्ट पे ये इसको पैरेलली बैलेंस कर रहा है। किसी चीज को बैलेंस करने के लिए प्रॉपर चीजें स्केल एंड साइज में होने की जरूरत है। अगर वो चीज प्रॉपर स्केल एंड साइज में नहीं होगी तो क्या वो डिजाइन बन पाएगा आपका? इवन इफ आई वांट टू क्रिएट अ रेक्टेंगल और स्क्वायर और ट्रायंगल और समथिंग, आई नीड टू बी डू इट लाइक दिस। दोनों साइड से प्रॉपर मुझे ये स्केल इसको रखना होगा, और उसके प्रोपोर्शन मुझे एक छोटा सा एंगल क्रिएट करना होगा, डायगोनल या फिर हॉरिजॉन्टल, कुछ तो डिजाइन क्रिएट करना होगा ताकि उस चीज को बैलेंस कर ले। तो स्केल और प्रोपोर्शन गोज हैंड ऑन हैंड। और इसमें क्या होता है? ये छोटा स्केल भी हो सकता है, बड़ा स्केल भी हो सकता है। बैलेंस क्या होता है? किसी स्ट्रक्चर को इक्वली उस चीज में अट्रैक्शन
क्रिएट करने से पहले उसमें एक हार्मनी लाने की जरूरत होती है। किसी चीज को अट्रैक्शन क्रिएट करने से पहले उसमें हार्मनी लाने की, डिजाइन करने की जरूरत होती है। तो क्या होता है, एक बैलेंस क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो बैलेंस में क्या है, ये जो आपका ये दिख रहा है स्केल, ये एक स्केल और ये एक स्केल, दोनों चीजें इक्वली एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। अगर इसमें कुछ ये कर्व लाइन होता या फिर इसमें कुछ डिस्ट्रैक्टेड लाइंस होते तो क्या ये डिजाइन में बैलेंस होता? नहीं होता, ये डिजाइन में बैलेंस नहीं होता। लेकिन दोनों साइड में इक्वली प्रोपोर्शनली उसको बैलेंस रखा है, उसको हार्मोनाइजली इसको अरेंज किया गया है। जो चीज हार्मोनाइजली अरेंज हो सके, वो विजुअली आपको कंफर्ट एंड एक फंक्शनैलिटी का एहसास दे, वो चीजें क्या हो जाती है आपके लिए, बैलेंस हो जाती है। अ फीलिंग ऑफ विजुअल इक्वालिटी इन शेप, फॉर्म, वैल्यू, कलर और एक्सेट्रा। ओके, फिर आता है आपका एम्पी हैजेस। द मेन, आप देख रहे हो अभी मेरे आउटलुक पे, मेरे पर्सनालिटी पे मेरा सबसे अटेंशन अगर कुछ चीज ले रहा होगा तो ये इयररिंग्स ही होंगी, सबसे बड़े बड़े इयररिंग्स मेरे कान पे, ये मेरा एम्पी हैजेस ऑफ द फेस हो गया। लेकिन डिजाइनिंग पार्ट ऑफ व्यू में आपके लिए क्या एम्पी हैजेस हो सकता है, जो चीज को आपको देखने में इंटरेस्ट हो वो आपके लिए एम्पी हैजेस बन जाएगा। आई होप आई एम क्लियर एंड नॉट सो फास्ट। इज इट क्लियर? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, क्लियर है। हाँ, मूवमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि कोई चीज आपको यहां से वहां लेके जा रही है। अ पाथ दैट योर आईज टेक थ्रू अ पिक्चर, दैट बिकम्स योर मूवमेंट। पैटर्न कैन बी रिपीटेशन ऑफ डिजाइन, आपका वो क्या क्रिएट करता है, पैटर्न। और रिपीटेशन क्या होता है, किसी चीज में समझो मुझे एक फ्लावर लानी है, लेकिन मुझे फ्लावर बहुत सारी लानी है, तो लाया नहीं जा सकता, ऐसा है क्या? नहीं ना, मैं जितना चाहूं उतना फ्लावर क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जितना चाहे मैं स्टोन्स ला सकती हूँ, मैं डायमंड्स ला सकती हूँ, मैं कुछ भी टेक्सचर चीजें ऐड ऑन और रिमूव कर सकती हूँ मेरे डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग। अब इस मंगलसूत्र में कितने सारे रिपीटेटिव छोटे छोटे स्पर्ल्स दिए गए हैं, तो क्या ये डिजाइन नहीं हो गया? ये भी तो नेकलेस बना ना तब जाके। अगर रिपीटेशन नहीं होता तो ये पूरा यहाँ से लेके एंड तक ये इसमें हुक लग पाता क्या? नहीं लग पाता। ये रिपीटेशन डिजाइन है, इसके लिए फंक्शनैलिटी के हिसाब से भी काम करिए, इसके वजह से पूरी डिजाइनिंग कंप्लीट हुई, इसकी वजह से आप प्रॉपर इसको नेकलाइन और नेक पीस बना पाए। ओके, प्रोपोर्शन मतलब क्या, ये साइज अभी इसको और इसको पैरेलली प्रोपोर्शन किया है ये छोटे से पेंडेंट के साइज के साथ, ताकि ये आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या फिर ये आपका एम्पी हैजेस बने। Okay, other thing is what you need to look is about variety. You will find a bore if you continuously see of one thing, so you need to break through that monotony. So to that you need to add on some variety, like I can say we can add black in back, we can add some white color to make it some more creative pattern, or in variety there are even you can use a different kind of shape and sizes. Like here you have a circle and a square, so in square and in circle you have a gray color, so there is a different in color variety and different size and shape. So variety can be in anywhere and you can use it any place. Okay, unity is what, where things are jointly placed, where are things are jointly placed and creating a balance, creating a harmony, creating a proper movement around the circle. You can see the example of feng shui, yin yang. This is the symbol is known as for yin yang is a feng shui symbol. So where there is a feeling of harmony between the element of the picture called unity. See, if I have this phone, again I'm taking my phone, I'm not promoting my phone at all, I'm not interested even, but I don't have any other example. Okay, we go with something else. I have this bottle. So what can be the factor reason to call it as a unity? This bottle comes with some kind of that cap. There is some kind of texture into it, some engraved texture into this. And now how this can be more balanced, because the top color and the bottom color are same.
The designing pattern are same. You can also say there is a difference of size and proportion. It has a long cylindrical shape, it has a short cylindrical shape, but the requirement of this bottle is fulfilled, the purpose of this bottle is fulfilled. What it do, it just give you, it give you a sense of how I'm thirsty right now, I need to have some water for myself and can could feel better and relax. So the purpose is already clear. But do only we look for that? No. Whenever we buy some water bottle, we look that it should be look quite attractive. It should be easy to carry. It should be enough to look like, yeah, it's mine. It's something different. So something that you have to look for, and for that you need to find out the unity, the purpose. It should go well with the design. It should also go with your choice of selection. Okay, so this is how the principle of design works. It is not just limited with a water bottle. You can go with, you can apply this small element of design and principle of design with any place you feel like, and I need to bring some creativity in my zone, whether it is fashion designing or it is interior designing. Now to come with color theory or the color wheel. To look beautiful, I need to have some balance in my color. Okay, I can be a gray, I can be black, I can be blue, I can be anything I wanted. But nature has made some different kind of color skin tone to everyone, and not my color skin tone can be go well with your color. Maybe you are much more fairer than me, or I can be much more brown in my shade. So can be anything, but can I not be look beautiful if I want to wear some different kind of clothes? Is it that there is something strict on portion कि ये लड़की इसी कपड़े के लिए बनी और दूसरे कपड़े के लिए बनी नहीं है? No, color cannot decide that ये color तेरे लिए है और ये मेरे लिए नहीं है. You can wear, you can go with any color you want, but if you have a good sense of selecting a color, you can be a good designer. So how that can we work out? So color theory help us to identify the issue with colors. How things can go well with our skin tone, how it will well go through with the interior aspect, how well it can go with my jewelry, or how it can go with my graphics, or anyway, because color is not a small part of designing field, but it is in everyone. Even if we look for a man or if we look for a woman, we look, ये थोड़ा tall होना चाहिए, थोड़ा handsome होना चाहिए. Well, you look, we go on with so many things, blah 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 blah, but that is not an important factor for this lecture. The main factor over here for this lecture is that why color theory is important to you all. The reason behind is that it helps to add beauty in your design. And the second thing, everyone has some choice of color. May you will like some black, blue, green, and you want to decorate some room like with this color, but you don't know, you cannot just keep on placing same color to entire room or entire bedroom or entire 2 BHK flat or 1 BHK flat. There have to be some monotonous break. There has to be some moment of change in design. There has to be some different in design of, considering whatever you like, as in this pattern or that pattern or whatever. ओके, कलर थ्योरी हेल्प क्या करता है? कलर थ्योरी हमको एक चॉइस ऑफ मेकिंग में हेल्प करता है कि चलो आज मुझे ये कलर का डिजाइन क्रिएट करना है. येलो कलर मैं पूरे घर पे दे सकती हूँ? नहीं. क्या मैं ग्रीन कलर पूरे घर पे लगा सकती हूँ? नहीं. तो हमें कलर थ्योरी हमको हेल्प करता है कि कौन से रूम में कौन से कलर जाएंगे. इवन डिजाइनिंग में मेरे स्किन टोन अलग होंगी, आपकी स्किन टोन अलग होगी, उसकी और की स्किन टोन अलग होगी, लेकिन कलर ने किसी को बोल के नहीं कि तुम्हारे लिए स्किन टोन के लिए बनी नहीं है. लेकिन हाँ, ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक ग्लिम्स दे देता है कि ये कलर अगर आप पे रहेगा तो ये बेटर लगेगा, या फिर ये कलर अगर मैं अपने इंटीरियर में अप्लाई करूंगी, इट विल लुक मच मोर बेटर इन डिजाइन. ओके, हम इनको बाद में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके मैं आऊंगी, डोंट वरी. कुछ होता है कूल कलर, कुछ होता है वार्म कलर. इनकी थ्योरी क्या है? कूल कलर क्या होती है, वार्म कलर क्या होती है, प्राइमरी कलर क्या होती है, सेकेंडरी कलर क्या होती है, टर्शियरी कलर क्या होती है, टिन टोन शेड क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक कलर्स क्या होती है, इनको कहाँ यूज करते हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या है, कलर स्कीम्स क्या है. ये तमाम चीजें आपके इंटीरियर में बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं, आपके ज्वेलरी डिजाइन में बहुत ज्यादा यूज में आएगा, फैशन डिजाइनिंग में तो भर भर के आएगा. जब आप इलस्ट्रेशन में आओगे, आप किसी डिजाइनिंग पैक्टिंग में आओगे, तो इसमें तो बहुत ही आएगा. और इंटीरियर डिजाइनिंग का सबसे बोले ना मेन कोर्स ही यही है कि कलर थ्योरी के बिना आप डिजाइनिंग को आगे बढ़ा भी नहीं सकते. आपने समझो कुछ चीजें बना लिया, लेकिन उसमें अगर कुछ कलर ही नहीं डाला, तो क्या वो लोगों को अट्रैक्टिव लगेगी?
तो हमें किस टाइप का कलर सिलेक्शन करना चाहिए, किस टाइप की कलर कॉम्बिनेशन पे जाना चाहिए, इंटीरियर में सबसे इंडस्ट्री के हिसाब से मोस्ट डिमांडिंग कलर क्या है, क्या कलर कॉन्सेप्ट होता है, थीम क्या होती है कलर की। ओके ये तमाम चीजें हम लोग, फिर कुछ एक्टिविटीज भी करना बाकी रहेगा। आज हम लोग समझेंगे कि कलर को कैसे मिक्स करके कैसे कलर पैलेट क्रिएट कर सकते हैं, कलर कैसे अट्रैक्टिव बन सकता है, अलग अलग कलर की साइकोलॉजी कैसी हो सकती है, कलर कौन से मूड को कैसे क्रिएट कर सकता है, ये हम कुछ कलर व्हील डिटेल में पढ़ेंगे, इनके कुछ कलर स्कीम्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कलर्स और इंटीरियर या फिर फैशन डिजाइनिंग या ज्वेलरी डिजाइनिंग में कलर में क्या रोल प्ले हो सकता है, ये तमाम चीज हम डिटेल में इंटीरियर एस्पेक्ट्स से पढ़ेंगे और ज्वेलरी के हिसाब से भी पढ़ेंगे। आज एक्चुअली मैंने सिर्फ ये थोड़ा पीपीटी ना एक पॉइंट से ही बना के रखा था, तो मैं आपके लिए सारा लेके आऊंगी, डोंट वरी। आज क्या है कि हम लोग बस एक इंट्रोडक्शन क्लास था, तो मैंने एक्चुअली क्लास बहुत लंबा चौड़ा खींच लिया है आज के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगा सो आई विल, एक मिनट, हाँ थैंक यू, बाय, एक मिनट, ओके सो हाँ, तो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन अभी समझना हेलो बहुत बाकी है, क्योंकि आज एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा टाइम लेक्चर ले लिया है। और हेलो हाँ मेरी आवाज आ रही है? कौन बात कर रहा था? यस मैम, लेकिन हाँ बोलिए ना प्लीज। अरे जाने दो, हेलो मैम, हाँ बोलिए ना प्लीज। मैम आपकी बात ये एक्चुअली ना पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे बार बार, एक मिनट। हाँ ये पीपीटी दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन में? नहीं। नहीं दिख रहा है ना? हाँ बस वो कैंसिल करी थी ना, हो नहीं रहा था, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो अभी आप अपने डाउट्स मुझे आराम से पूछ सकते हैं। आज एक्चुअली लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया मैंने, लेकिन कल से इसमें मैं एकदम टू द पॉइंट पढ़ाऊंगी, क्या क्या चीजें हो सकती है, हम डिजाइनिंग में क्या क्या जा सकते हैं, ये सब बताना मुझे बहुत जरूरी था, ताकि आप जहां पर हो यहाँ पर आपके लिए और कितना मजेदार हो सकता है क्लास, या फिर कितनी इंटरेक्टिव हो सकती है, आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। आपको इसके नोट्स टाइम टू टाइम वीकली में मिलते रहेंगे, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट में मैं क्लास थोड़ा वाइंड अप कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि ये आपका जो बेसिक एलिमेंट ऑफ डिजाइन या प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर कुछ टॉपिक है जो आपका क्लियर नहीं हुआ, या फिर कुछ भी अगर ज्वेलरी के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है या किसी भी टॉपिक को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ श्वेता, आपका ना ये अटक गया है नेटवर्क, और हाँ अभी आप आ रहे हो, विजुअली दिख रहे हो। सो आई वांट कि आप सब लोग अभी अपना एक एक फीडबैक दे, आपको क्या लगा, कैसा लगा लेक्चर, इंटरेक्टिव लगा, बोरिंग लगा जो भी लगा, और क्या आप मुझे, आपका क्या डाउट है आप प्लीज मुझे शेयर कीजिए प्लीज। आप पूछ वन बाय वन। गगन जी हाँ प्लीज। Excellent session. Thank you so much. हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपकी? हाँ अभी आ रही है श्वेता, मैं आपको बुलाऊंगी, आप अब तब तक आप म्यूट रखिए। ओके हाँ, हाँ गगन जी। Just wanted to check. इसके आपने बीच में कहा था ना कि notes भी देंगे. हाँ Will that be on a regular basis or will it be once a week? ना Or वंस अ वीक, बिकॉज यू नो आपका क्या है कि डेली का कुछ पावर पॉइंट मतलब कुछ पीपीटीज रेडी होंगे ना, तो एक साथ ही मैं पूरे एक वीक का पूरा एक साथ दे दूंगी, वन ठीक क्योंकि है. एक हफ्ता चलेगा तो एक साथ जितने भी पीपीटी रेडी होंगे तो मैं उसको आपको फिर एक साथ पूरा क्लब करके दे दूंगी, तो क्या आपको लेक्चर भी रिवाइज होता रहेगा। और मैं आपको ना समझो आज एक लेक्चर लिया तो कल उसका थोड़ा नेक्स्ट डे जब भी आओगे तो आप उसका थोड़ा रिविजन करवा दूंगी, ताकि आपने जो पढ़ा आपको नेक्स्ट डे भी याद रहे। फिर हम लोग ऐसे थोड़ा पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आपका एक वीक में रिवीजन भी होता रहेगा, आपका टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा, आपके पास पीडीएफ भी आ जाएंगे टाइमली, डोंट वरी। Is the recording available? I mean, how does it या work? या यू कैन गेट दिस रिकॉर्डिंग, Okay. Thank you डोंट so वरी। much. Excellent एंड session once again. Thank you.
हाँ, थैंक यू एक्चुअली आज तो भी कुछ सेशन हुआ नहीं है, बहुत छोटा सेशन लग रहा है मेरे को, ऐसा मुझे दुख हो रहा है कि और भी कुछ कराना था, बट इट टुक्स मी अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आप लोग भी आई थिंक बहुत बिजी शेड्यूल पे रहे होंगे, तो डोंट वरी, अभी नेक्स्ट टाइम से जो भी लेक्चर्स होंगे और भी टू द पॉइंट होंगे, ताकि अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं श्वेता जी। अभी श्वेता जी आपका हैंग हो चुका है लगता है, नेटवर्क इशू है आपके वहां पे। लक्षित, बीबी, आयशा, शादिया, सदिया, प्लीज लेट मी करेक्ट इट, या प्लीज करेक्ट मी। सादिया सादिया, सादिया सादिया। तो हाँ सादिया, आपको सादिया। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनीथिंग दैट यू फील दैट कि आज का लेक्चर मैम अच्छा लगा, ऐसा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं है, लाइक अभी फर्स्ट है तो पहला लेक्चर था तो इतना कुछ मुझे समझ में नहीं आया अभी। आपकी तरफ से डिलीवरी अच्छी थी, लेकिन मैं थोड़ा बीच में गायब भी हो गई, और फिर मेरे को अभी फर्स्ट टाइम है तो समझ में नहीं आया उतना। बट एक बार आई विल रिवाइज माय नोट्स जो आप मुझे प्रोवाइड करोगी, देन मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप ओके, करूंगी नेक्स्ट कोई क्लास में बात अगर नहीं, मुझे कुछ आपको डाउट हो नोट्स तो। आप मुझे बताओ आपको अभी क्या नहीं समझा, बिकॉज यू नो यही तो टाइम है जब जहां पर आपको मैं चीजें थोड़ी करेक्ट कर सकती हूँ। शायद अगर आपको एलिमेंट ऑफ डिजाइन में नहीं समझा या प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में नहीं समझा, या दोनों ही नहीं समझा, हाँ, दोनों। दोनों ही नहीं समझा। ओके, ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट पे चीजें समझाती हूँ एक कहानी की तरह, ओके, ताकि ठीक आपको है। और थोड़ा इजी लगे इस पार्ट पे। क्या होता है एलिमेंट ऑफ डिजाइन, मतलब क्या, किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, और प्रिंसिपल कहते हैं उस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंटेशन में बना के रेडी करना। दोनों का फंक्शन क्लियर हो गया। समझो मैंने एक बना लो रेक्टेंगल बनाया, रन। ओके। तो मुझे ना एक्चुअली आपकी शादी, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। सॉरी 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 सॉरी, अभी आप बोल दो, मैं एक बार सुन लूंगी। अच्छा, अभी आप समझ गए। तो क्या होता है, आपने एक डिजाइन बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, या फिर कुछ भी, फॉर एग्जांपल मेरी इयररिंग्स ही देख लो एग्जांपल शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बनने से पहले कुछ तो एक फॉर्म हुआ होगा, डॉट, लाइन, शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सिलेंडर, कुछ तो एक शेप में आया होगा, राइट। तो ये शेप जो बेसिक जो फाउंडेशन होता है ना, वो एलिमेंट से शुरू होता है। प्रिंसिपल क्या करता है, उसे उसका ब्यूटी क्रिएट करने में उसको हेल्प करता है। बिना प्रिंसिपल के कोई एलिमेंट ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकती। ये क्लियर हुआ। फॉर जी एग्जाम्पल मैम। ये एक सर्कल है, ठीक है, देखने जाए तो एक सर्कल ही बनता है, ऐसे गोल गोल इयरिंग्स। लेकिन ये गोल इयरिंग को जब वॉल्यूम ऐड किया गया, तब जाके एक इयरिंग के ये बड़े बड़े पेबल्स जैसे शेप लेने लग गए। पर्ल्स, पेबल्स, या फिर कुछ ऐसे, कुछ पेबल्स बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, पर्ल्स जैसे शेप लेने लग गए। ओके, एक मिनट, हाँ, ओके, हाँ, पर्ल्स जैसे शेप लेने लग गए। मैं पेबल्स बोल बिकॉज आई एम मोर इनटू इंटीरियर। सो ऐसा नहीं कि मैं फैशन और बाकी नहीं पर समझा सकती, लेकिन मेरे को ना ज्यादा टर्म, मैंने प्रेजेंटेशन ही वो बनाया तो इसलिए दिमाग में भी वही चीजें आ रही है। तो क्या है, ये समझो, ये सर्कल और सिलेंडर बेसिक चीज, हमने स्ट्रक्चर बना रहे तो एक सिंपल सर्कल से शुरू किया होगा। ड्राइंग बुक में बनाया कि एक सर्कल सर्कल करके ऐसा डिजाइनिंग इयरिंग होंगी हमारी। आप उस पर थोड़ा कलर ऐड किया, अब मेरे इयरिंग बड़े होंगे, छोटे होंगे, साइज में प्रोपोर्शन होंगे, प्रोपोर्शनेट नहीं होंगे, कुछ तो अलग होगा। ये बेसिक जो चीजें हम लोग 2D लाइंस पे बना ली है। तो 2D लाइंस और उसकी जो भी मेंटल थिंकिंग जो होती है ना, वो सारी एलिमेंट ऑफ डिजाइन को यूज करके बनाई जाती है। लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, फॉर्म। ओके, फिर क्या होता है जब ये एक एक टेक्सचर में आ जाते कि स्मूथ बनाना है कि रफ बनाना है, या फिर इसको एकदम वर्टिकल बनाना है, या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाना है, या फिर कुछ भी एक पैटर्न में से इयरिंग्स क्रिएट करनी है, या फिर जो भी, ये जस्ट इयरिंग की एग्जांपल बता रही हूं, ताकि आपको सबसे इजी वे में वो समझ में आए। ओके, तो क्या होगा, इसमें कोई कलर नहीं है, ये बस एक कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब ये इसको अगर मुझे कलर ऐड करना, तो व्हाइट कलर का भी मैं ऐड कर सकती हूँ, ब्लू कलर भी बना सकती हूँ। क्लाइंट्स को या कस्टमर को ये डिजाइन किसी भी कलर में पसंद आ सकता है, नॉट नेसेसरी कि व्हाइट पे रखा तो व्हाइट ही पसंद आए, राइट। आपकी चॉइस ऑफ कलर अलग हो सकती है, मेरी चॉइस ऑफ कलर अलग हो सकती है। तो यूनिवर्सल जब डिजाइन होता है कोई भी, तो हम डिजाइनिंग फील्ड में एक लेके चलते कि अगर मैं कुछ ऐसा, जैसा हमने देखा है कि बिल्डिंग में भी जाओगे तो सैंपल फ्लैट पहले रेडी होता है। सबके घर में वो फ्लैट जाता है सेम टू सेम, ऐसा थोड़ी होता है।
सैंपल फ्लैट एक आइडिया देने के लिए होता है कि आपका घर इतना सुंदर दिखने में लग सकता है या बन सकता है। वैसे वो सैंपल फ्लैट को क्रिएट करने से पहले क्या होगा, बेसिक एलिमेंट्स क्रिएट होने लग गई कि स्पेस कैसे प्लान किया जाता है, स्पेस का प्लानिंग कैसा होता है। तो वो लेआउट तक पहुंचने के लिए आपको एलिमेंट ऑफ डिजाइन समझना जरूरी था, क्योंकि एक बार आपने एलिमेंट ऑफ डिजाइन समझ लिया तो प्रिंसिपल डिजाइन में क्या है, सिर्फ मटेरियल और उसको यूज और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आ जाती है। और इन दोनों को होने के बाद थर्ड क्या होगा, एग्जीक्यूशन। एक बार आपने मटेरियल कुछ परचेस कर लिया या डिजाइनिंग में कुछ चीजें कर ली, तो उसको बनाया कैसे जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या करता है, वो उस प्रोसेस को पुश करता है बनाने तक के लिए। वंस वो पुश हो जाता है, उस लेवल तक वो रेडी हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट, वो डिजाइन, वो चाहे वो फर्नीचर हो या बेड हो या आपका इयरिंग हो या फिर आपके कपड़े का डिजाइन हो या एनीथिंग, बिकॉज डिजाइन खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैंने इसलिए यूनिवर्सली आपको टॉपिक लेके समझाया, ताकि यहाँ पर जो भी इंटीरियर के फील्ड में हो या ना हो या फिर दूसरे फील्ड के बच्चे हो, हेलो उनको ये मैम। चीजें हेलो बहुत क्लियरली समझ आए। श्वेता, आप कुछ कह रहे हैं? मैम, आपको मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, वीडियो आ रही है। क्लियर है? हाँ हाँ, एकदम क्लियर है। वीडियो वीडियो ओके। वीडियो नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है। हेलो मैम, वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, वॉइस आ रही है। हेलो आ रही है, आ रही है। दिखाई भी, आप दिखाई नहीं दे रहे हो लेकिन सुनाई दे रहे हो। मैम, वॉइस वीडियो। क्लियर है। क्लियर हो, मैम, क्लियर हो। वीडियो हाँ, ओके। अब मैम मेरा ये डाउट था कि आपने जो रिदम बताया था मैं वो रिपीट कर दीजिए, क्योंकि बीच में मेरा नेटवर्क ना छोड़ दे रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सादिया, आपको मैं अब जो एक चीज समझा रही थी, आपको वो चीज समझ में, बेसिक हम लोग कैसे फंक्शन चीजों को समझा सकते हैं, मैम, वॉइस इम्प्लीमेंट कर सकते नहीं हैं। आ रही है। हाँ हाँ, यस यस। मैं थोड़ा वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्लियर? नो मैम, नॉट क्लियर। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। मेरे यहाँ पर तो फुल नेटवर्क दिखा रहा है, फुल नेटवर्क है वाईफाई का। आई डोंट नो क्या ओके। प्रॉब्लम है, इश्यूज है, शायद हो भी सकता है कुछ। आप कहाँ से हो? मैम हम वो वाराणसी से हैं। वाओ, बहुत अच्छा प्लेस है। ये यस मैम। ओके, एक मिनट का, आप थोड़ा अनम्यूट करेंगे क्या, सब अपने आप को म्यूट करेंगे क्या, 2 मिनट? श्वेता जी, मुझे सादिया से कुछ सवाल पूछना है। 1 मिनट, मैं मैसेज लिख देती हूँ। या मैसेज किया है मैंने। सादिया, आपको अभी जो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया एकदम शॉर्ट पे, वो समझा है क्या, यस या नो? जी जी। ओके, ठीक है ठीक है। क्या मेरा, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक को ही फोकस करूंगी, आई विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ओवर हियर। और मैं चाहती हूँ कि जिसका भी जो भी डाउट हो ना, हम लाइन से सबके डाउट्स क्लियर करें, ऐसा कि नहीं कि मैं सिर्फ किसी एक पे ही फोकस करूंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि और अगर क्लास इंटरेक्टिव हो तो आप सबको अपना कैमरा ऑन रखना होगा, और कल से एकदम डिटेल पे जाएंगे हम लोग। ओके, शादिया जी, आप इंटीरियर के स्टूडेंट हो या फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट हो, या आपने क्या चॉइस किया है कोर्स के लिए? मैम फैशन फैशन में। फैशन, फैशन, ओके। भावेश का मुझे पता है। लक्षित, लक्षित जी आपका क्या है? साधना, साधना नाम है कि लक्षित नाम है? क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन हो। मैम माय आपसे, नेम इज तान्या सिडाना एंड अच्छा, मैम मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में किया है। किस चीज के लिए आपने लिया है, फैशन या इंटीरियर या ज्वेलरी? मैम ये तो आइडिया नहीं है मैम, ग्राफिक्स मैंने लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइन फाइन, डोंट वरी। यहाँ पर सबके सेशन होंगे अच्छे से। आज और कल थोड़ा हम लोग बेसिक्स पे फोकस करेंगे, फिर टू द पॉइंट धीरे 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 हम लोग पूरे डिटेल में जाएंगे, क्योंकि एक दिन में सब कुछ सीखना इम्पॉसिबल है। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके सीखो, क्योंकि कुछ ऐसा
कुछ टास्क भी होंगे, कुछ असाइनमेंट्स भी होंगे जो आपको करने होंगे और मैं सिखाऊंगी भी, तो आपको मजा आएगा करने में। ओके, डोंट वरी। अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है किसी चीज को लेके, एनीथिंग विथ योर कोर्स और एनी क्वेश्चन विद दिस लेक्चर और टुडेज लेक्चर और टुमारो लेक्चर, कुछ भी ऐसा नहीं तो जाए। ओके, आई एम लीविंग राइट नाउ। टेक केयर, कल मिलते हैं फिर से। एंजॉय योर डे, बाय बाय।